ناظرین آداب، پیش ہے اردو خبرنامہ۔ میں ہوں شیخ انوار الحق۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناو مہم میں تیزی۔ قومی اور مقامی سیاسی پارٹیوں کے بڑے لیڈران ووٹران کو اپنی طرف راغب کرنے میں کر رہے ہیں کوشش۔ بھاجپا اور نیشنل کانفرنس کے مابین بیان بازیوں کا سلسلہ جاری۔ کانگریس اور نیشنل کانفرنس عوام کو دے رہی ہے دھوکہ۔ راجناتھ سنگھ، نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد ہوگا کامیاب۔ فاروق عبداللہ۔ دنیا بھر میں آج خواندگی کا عالمی دن منایا گیا۔ کئی تقاریب کا کیا گیا اہتمام اور سری نگر کے کھوج بازار میں کھوج دیگر کا اہتمام۔ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی شرکت۔ اب پیش خدمت ہے ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناو مہم عروج پر پہنچ چکی ہے۔ چناو 3 مراحل میں ہو رہا ہے۔ پہلا مرحلہ 18 ستمبر، دوسرا مرحلہ 25 اور تیسرا مرحلہ 1 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ سبھی قومی اور مقامی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران روڈ شوز، چناو ریلیاں اور میٹنگوں کا انعقاد کر رہے ہیں تاکہ ووٹران کو اپنی طرف راغب کیا جا سکے۔ بھاجپا کانگریس پارٹی کے سٹار کمپینر جموں کشمیر میں اپنی اپنی پارٹیوں کے لیڈران کے لیے ووٹ اپیل کرنے کے لیے دورہ کر رہے ہیں۔ آج جموں میں بھاجپا کے سینئر لیڈر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک چناوی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس اور نیشنل کانفرنس اتحاد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹیاں جموں کشمیر کو ایک بار پھر سے دفعہ 370 میں الجھا رہی ہیں۔ تاہم جب تک بھاجپا مرکز میں برسر اقتدار ہے تب تک اس کو کوئی بھی واپس لانے کی طاقت نہیں کر سکتا ہے۔ بھاجپا امیدواروں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی رواں ماہ کی 14 تاریخ کو جموں کشمیر چناو مہم میں حصہ لیں گے، جبکہ پارٹی صدر جے پی نڈا بھی چناو مہم میں شامل ہونے کے لیے دورہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے بانیہال اور ڈوڈا میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لیے چناو ریلیوں سے خطاب کیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امید ظاہر کی ہے کہ این سی کانگریس اتحاد آنے والے چناؤ کے دوران واضح اکثریت حاصل کر کے جموں کشمیر میں نئی حکومت تشکیل دیں گے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج درگاہ حضرت بل میں نیشنل کانفرنس کے بانی اور سابق وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کی 42ویں برسی پر ان کے مقبرے پر خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے حال میں دیے گئے اس بیان کی نکتہ چینی کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ این سی اور کانگریس کبھی بھی جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ فراہم نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ مرکز اس وقت جموں کشمیر میں کئی آزاد امیدواروں کو چناؤ لڑا رہے ہیں تاکہ ووٹ کو بانٹا جا سکے۔ تاہم ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر کے عوام بالغ نظری کا مظاہرہ کریں گے اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنا کر ایک جمہوری حکومت کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور پارٹی سے وابستہ سرکردہ لیڈران اور کارکنان نے مزار قائد پر گلباری اور فاتح خوانی کی۔ اس دوران پارٹی لیڈران نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کے دور قیادت کو فکر مندانہ اور مستقبل کے چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکیمانہ دور ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج چترگام شوپیاں میں ایک چناوی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی سرکار کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جموں کشمیر سے دفعہ 370 کو ختم کرنے کے بعد جو دعوے کیے تھے وہ مکمل طور پر سیراب ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے خلاف کھڑا ہونے والے امیدوار عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ انہیں چند ایجنسیوں کے ذریعے الیکشن کے لیے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ وہ ووٹ کو بانٹ سکیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایسے عناصر کو کامیاب ہونے نہ دیں بلکہ نیشنل کانفرنس اور اس کی ساتھی پارٹی کانگریس کے امیدواروں کو دل کھول کر ووٹ دیں اور کامیابی سے ہمکنار کریں۔ ناظرین خبریں جاری ہیں، پہلے یہ تجارتی وقفہ۔ ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک۔ مان گئے بیٹا، پر الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک۔ ناظرین خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔
उमर अब्दुल्ला ने आज ही गागरन शोपियां में भी एक चुनावी रैली से खिताब किया और लोगों से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में जमहूरी इदारों को बेअसर करके रख दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के मसाइल की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। उन्होंने लोगों से कहा कि वो आने वाले चुनाव के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को कामयाब बनाकर अपने मसाइल को हल करने की तरफ कदम बढ़ाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज हल्के इंतखाब जड़ीबल के तहत आने वाले सोरा इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब किया और लोगों से अपील की कि वो उनकी पार्टी के उम्मीदवार तनवीर सादिक के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क के कई रियासतों में इस वक्त नफरत की सियासत को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की अक्सरियती बरादरी को मसाइब का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद है और हमेशा से ही अमन और भाईचारे को अवलीन तरजीहात में रखा है, इसलिए यहाँ पर नफरत की सियासत कभी कामयाब नहीं हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और दमहाल हांजीपुरा हल्का इंतखाब की नामजद उम्मीदवार सकीना यत्तू ने आज अपने हल्का इंतखाब के कटमर्ग में एक चुनावी मीटिंग से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उनकी पार्टी के हक में वोट दें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। सकीना यत्तू ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अवाम को कई मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम आने वाले इंतखाबात में उनकी पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो वो दूर दराज इलाकों समेत सभी अजला के लोगों की फलाह व बहबूद के कामों की शुरुआत आज सर नौ करने को तरजीहात में रखेगी। CPIM के सीनियर लीडर MY तारिगामी ने आज कुलगाम हल्का इंतखाब के यारीपुरा, मुट्टी, बुग और पंडितपुरा में चुनावी मीटिंगों का एहतमाम किया और मौजूद लोगों से अपील की कि वो उन्हें आने वाले इंतखाबात के दौरान वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि हल्के में जमहूरी इदारों की बहाली के बाद अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की तरफ इक़दामात किए जा सकें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कोकरनाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने अवामी उमंगों और ख्वाहिशात को पूरा करने की पॉलिसी को अवलीन तरजीहात में रखा है। लारनू कोकरनाग हल्का इंतखाब के पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी हारून की हिमायत में मुनक्किद किए गए इस कन्वेंशन में महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ पार्टी वर्करों बल्कि मकामी लोगों से अपील की कि वो PDP के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए चुनाव के दिन उनके हक में वोट डालें। महबूबा मुफ्ती ने आज ही वानपू अनंतनाग में एक चुनावी रैली से खिताब किया और लोगों से कहा कि PDP एक ऐसी जमात है जो यहाँ के लोगों की सही तर्जुमानी कर सकती है, इसलिए आने वाले इलेक्शन के दौरान अनंतनाग वेस्ट हल्के के नामजद उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार सोफी को वोट देकर कामयाब बनाएं। बीजेपी लीडर और लाल चौक हल्का इंतखाब के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन ने आज जावरा, जाफरान कॉलोनी और जेवन इलाकों में चुनावी मीटिंगों से खिताब किया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर आने वाले इंतखाबात में वो कामयाब हो जाते हैं तो वो लाल चौक हल्का इंतखाब के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और नौजवानों को भी बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी पार्टी पहले ही वादा बंद है। PDF के चेयरमैन और खान साहब हल्का इंतखाब के नामजद उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने आज पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त गोनागू मुश्किलात से दो चार हैं और बिजली की नाकिस सप्लाई और पानी की किल्लत हर तरफ देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो आने वाले इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो वो NHPC के ज़ेर असर सभी पावर प्रोजेक्टों को वापस करने की मांग जोरों शोर से उठाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर को अपने प्रोजेक्टों से हासिल होने वाली बिजली का एक अच्छा खासा हिस्सा मिल सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर और पहलगाम हल्का इंतखाब के नामजद उम्मीदवार रफ़ी अहमद मीर ने कहा है कि उनकी पार्टी समाज के पसमानदा तबकों की भलाई के लिए काम करेगी और इसलिए उन्होंने अपने चुनाव मंशूर में भी इस बात का जिक्र किया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर सलर पहलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम चूंकि एक दूर दराज हल्का इंतखाब है जहाँ के मकामी लोगों को मुख्तलिफ सतहों पर मसाइल का शिकार होना पड़ रहा है, उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वह हल्का इंतखाब की तरक्की के लिए तरजीह बुनियादों पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर और हब्बकदल हल्का इंतखाब के नामजद
उम्मीदवार जिलानी हामिद कुम्हार ने आज घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों को अपनी पार्टी के मंशूर से आगाह किया और कहा कि अगर उनकी पार्टी इक्तिदार में आती है तो वो मुफ्त राशन और LPG सिलेंडर फराहम करने के अलावा छापड़ी फरोशों और ऑटो स्टैंडों की रजिस्ट्रेशन का भी अमल शुरू करेगी। उन्होंने नौजवानों को भी यकीन दिलाया कि उनके सभी मसाइल को हल किया जाएगा। सोपुर हल्का इंतखाब के आज़ाद उम्मीदवार आरती नेहरू ने कहा है कि कश्मीर वादी उनके दिल के करीब है और वो सोपुर कस्बे की तरक्की के लिए काम करना चाहती है, इसलिए उन्होंने आने वाले इंतखाबात में सोपुर हल्का इंतखाब से चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। आरती नेहरू का कहना है उन्हें उम्मीद है कि न सिर्फ पंडित बरादरी के लोग उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएंगे बल्कि यहाँ का अक्सरियती तबका भी वोट देकर उन्हें हल्के की तरक्की के लिए काम करने का मौका देगा। जुनैद अजीम मुत्तू और शेख इमरान ने आज श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिका सरकारों की नाकामियों को उजागर किया। इस मौके पर दोनों ने आने वाले इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में मोहम्मद इदरीस करनाही को करना से टिकट दिया गया है, गुलाम मोहम्मद मीर को हंदवाड़ा से, अब्दुल रशीद खान को सोनवारी, नसीर अहमद लोन को बांडीपुरा, फकीर मोहम्मद खान को गुरेज, RS पठानिया को उधमपुर ईस्ट, डॉक्टर भारत भूषण को कठवा, राजू भगत बिश्ना, विक्रम रंधावा को बहू और सुरेंद्र भगत को मुड़ से नामजद उम्मीदवार के बतौर पार्टी का टिकट फराहम किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू सूबे की 4 नशस्तों के लिए अपने नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त के मुताबिक उधमपुर ईस्ट से सुनील वर्मा, कठवा से सुभाष चंद्र, आजादिया सीट ST के लिए मखसूस है, विजयपुर राज से राजेश प्रगोत्रा और नगरोटा से जोगिंदर सिंह को टिकट दिया गया है। जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने आज आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान खवातीन पोलिंग अमले, होम वोटिंग के लिए नामजद अमले और जिस्मानी तौर खास अफराद जिनकी खिदमात ऐसे पोलिंग स्टेशनों के लिए हासिल की जाएंगी जिन पर खुसूसी इंतजामात रखे गए हैं से मुलाकात की और उनसे ताकीद की कि वो पोलिंग के इस अमल में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करें ताकि इलेक्शन के दिन किसी भी वोटर को तकलीफ का सामना न करना पड़े। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।